गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने सुनहरे हंस के बारे में पढ़ा था। क्या देखा था? एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। पति बीमार पड़ गया, पति गुजर गया, पत्नी को मेहनत करके कमाना पड़ता था, उसे रोजी रोटी के लिए बाहर जाके मेहनत करना पड़ता था। और पति एक हंस के रूप में उसने फिर से धरती पर जन्म लिया। तब उसे इच्छा हुई मैं जाके अपनी पत्नी को देख के आऊं। तो वो अपनी पत्नी को देखने के लिए गांव में गया। गांव में क्या देखा? पत्नी बहुत मेहनत कर रही है, उसे बहुत दुख हुआ। तो वो पत्नी के पास जाके बोलता है, मैं तुम्हारे पास हर रोज आऊंगा, तुम मेरे एक सुनहरे पंख को लेके, सोने के पंख को लेके उसे बेच दो, उसमें से जो भी पैसा आएगा उससे तुम अपना गुजारा करो। So what is the story? Is first para we saw that a Brahman was there. He was having a wife and he fell sick and he died. So the wife had to work hard for her, what you call it as, to fill her stomach. She has to work hard. If Brahman had not left any property for the wife, so she had to go out, work hard to look after herself. This Brahman again born on the earth in the form of golden swan. He wanted to see how his wife is living, so he came back to the same village, and what he sees, wife is struggling hard to earn money. So he came to the wife and said, I am your husband, okay, Brahman which I died. I have now got the birth of a golden swan. Daily I will come to you, you pluck one golden feather, sell it, and whatever the amount you get, you stay with it very happily. Now let us see further what happens. इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। अब हंस अपनी पत्नी को हर दिन एक सोने का पंख देने लगा। पत्नी जल्द ही धनी हो गई। So the wife was very much happy. Daily she was going to get one golden feather. So daily the golden swan used to come and used to give one golden feather to the wife, and that golden feather the wife used to take to the market, sell it, and she became a very wealthy person. So वो धनी हो गई। हर रोज वो हंस आके उसे एक सोने का पंख देता था। सोने का पंख, सोने का भाव बहुत होता है। The value of gold, the money will get more. So उसे बहुत सारा धन मिला, वो बहुत धनी हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि क्यों न मैं इस हंस के सोने को सब पंख एक साथ निकालूं। इस प्रकार मैं एक ही दिन में गांव की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ। यही सोचकर उसने हंस को पकड़ा और सारे पंख नोच नोच कर निकालने लगी। सो वो ब्राह्मण की पत्नी को ऐसे लगा, वो लालची बन गई, ग्रीडी। उसने सोचा एक एक पंख क्या लेने का, सभी पंख में एक साथ ही निकाल लूंगी। आज हंस को आने दो, उसे पकड़ के सारे पंख एक ही साथ निकाल दूंगी। यह ब्राह्मण की पत्नी के मन में विचार आया। सो वो बहुत लालची बन गई थी। सो उसने क्या किया, वो हंस आया, उसने पकड़ लिया और जोर जोर से सारे पंख निकालने लगे। सो व्हाट हैपेंड? Brahman's wife became greedy, want to take one golden feather. Let today the swan come, I'll catch and I'll pluck all the feathers at a time. So when the swan came, she caught and started to pluck one by one the feather. She wanted to have all the feather together, so when she sells it, she can become the richest woman in the village that she had. वो एकदम धनी औरत बनना चाहती है, गांव में सबसे धनी औरत वो बनना चाहती है। उसका लालच उसके मन में जाग गया। हंस ने जी जान लगाकर अपने को किसी तरह छुड़ाया। So the swan struggled very hard, but somehow the swan got himself freed from the wife's hand. और हमेशा के लिए उड़ गया, and it flew away forever. From that day onwards it never came back. लालची औरत अकेली रह गई. So the greed made that woman to stay alone. Swan did not come. So whatever the money was there, she started to spend. So a day came again when she became a very poor woman. और
उसके पास फिर से आमदनी की कोई साधन न था. She had no means for earning. She lost due to her greediness. So children, don't be greedy. Whatever you get, think that God has given to you this much only and be satisfied. कभी भी लालच मत करना. भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष से रहो. भगवान न जाने बाद में आपको अच्छा भी करे और ज्यादा भी दे, तो कभी भी लालची मत बनो. जितना भगवान ने दिया उसमें संतोष से रहो. यही इस पाठ का बोध है. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. डोंट बी ग्रीडी. Be satisfied with whatever the God gives you. That is the moral of this story. अब हम थोड़े से कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे. बीमार, रोगी, अनहेल्दी वो मैंने दिया था. साधन, जरिया, मीन्स वो भी मैंने दिया था. कमाई, आमदनी, इनकम वो भी मैंने दिया था. अब निर्धनता. निर्धनता मीन्स पॉवर्टी, गरीब, पॉवर्टी. दुख. दुख का मतलब क्या है? हम जब भी कष्ट में होते हैं उसे दुख कहते हैं. सैडनेस. सो दुख माने कष्ट. कष्ट माने इन इंग्लिश व्हाट इज से सॉरो. सो ब्राह्मण की पत्नी दुख में थी क्योंकि ब्राह्मण जब चल बसा उसने कोई सा भी सामान नहीं छोड़ रखा था, तो उसे मेहनत करके खाना पड़ता था. इसलिए ब्राह्मण की पत्नी दुखी थी. दुख मने सॉरो, कष्ट. बाद में खुश, प्रसन्न. प्रसन्न मने हैप्पी. ब्राह्मण की पत्नी खुश हो गई कब? जब हंस आके उसे बोला मेरे एक सोने के पंख ले लो और उसे बेच के अपना जीवन चला लो. इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हो गई. She was very much happy. Brahman's wife became very much happy because Brahman had again reborn on the earth as golden swan. He came and told to his wife, I know you are leading a very bad life. You are very poor. You pluck one golden feather from me. You sell it and whatever money you get, you can be happy. You can live happily. So happy, prasann, खुश. दूसरा है धनी. धनी माने अमीर. अमीर माने रिच. जब ब्राह्मण की पत्नी को एक एक सोने का पंख मिलने लगा वो उसे बेचने लगी और उसके पास पैसे ज्यादा होने लगे. So when Brahman's wife got one golden feather, she sold it and she became very rich. So वो धनी बन गई, अमीर बन गई. She became rich. लालची. लालची माने लोभी. लोभी in English we call greedy. So I told you just now, ब्राह्मण की पत्नी बहुत लालची हो गई. एक एक सोने का पंख लेके मैं क्या करूंगी? आज हंस मारे रे, सारे सोने के पंख में उसे निकाल लूंगी. एक ही साल मुझे उतना सारा धन मिलेगा. So वो लालची बन गई. So the Brahman's wife became very greedy. What one golden feather I do? Let today the swan come. I'll pluck all the feathers at a time, so I can become a very rich woman in the village. That is what you call it as greedy. But see children, greediness is not good. It will lead you to the sorrow. Okay? You should be satisfied with whatever you get. That is a God's, okay, your wish is there. You should be given this much, that much only you will get. So don't be greedy in the life. Always learn this lesson. This is the moral of the story. If you become greedy, you will become unhappy. If you want to stay a peaceful life, whatever God gives, thank Him that today you have made me to see this day. Today I am alive due to you. Whatever you have given, I am satisfied with that. That is what your thinking should be there. So don't be greedy. यही कहानी का बोध है. कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए. कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए. लालची बनने से हम दुखी होते हैं. सो थोड़ा ग्रामर पार्ट है वो मैं सिखा दूंगी. सो पत्नी जल्द ही डैश हो गई.
सो क्या होगा, पत्नी जल्द ही धनी हो गई। वो क्या हो गई, धनी हो गई। फिल अप द ब्लैंक्स, पत्नी जल्द ही धनी हो गई। डैश औरत अकेली रह गई। कौन सी औरत अकेली रह गई, लालची औरत अकेली रह गई। कौन सी औरत, लालची औरत। हमने 2 सवाल के जवाब देखे थे, 2 और सवाल है। हंस औरत को कैसे पंख देता था, हंस औरत को हर रोज 1 सोने का पंख देता था। कैसे देता था, 1 सोने का पंख देता था। औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया, औरत लालची बन गई और उसने निश्चय किया मैं सारे पंख एक साथ नोच कर तोड़ लूंगी। यही औरत का फैसला था। किसके बारे में, हंस के बारे में। अब एक और ग्रामर है जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय विलोम, विलोम इज ऑपोजिट। विलोम शब्द का अर्थ क्या है, ऑपोजिट। सो हम विलोम शब्द देखेंगे। विलोम, विलोम in English we call it as opposite. Children, you have to keep one thing in mind. Whenever you are writing remove विलोम शब्द बीमार, you don't put that, always you should put into mark. This into mark denotes that it is opposite. ये एक चिन्ह लगाना चाहिए, इस चिन्ह का अर्थ है ये विलोम शब्द है। आपको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ये हम मीनिंग्स के लिए लगाते हैं, अर्थ लिखने के लिए लगाते हैं, वचन बदलने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, ये चिन्ह लगाना चाहिए। किसके सामने, विलोम शब्द के सामने। बीमार, बीमार का विलोम शब्द है स्वस्थ। बीमार मीन्स सिक, स्वस्थ मीन्स हेल्दी, अनहेल्दी हेल्दी। सो दैट इज द ऑपोजिट। दूसरा है सुख, सुख means happy, happy opposite is sad, sad means दुख। so सुख का विलोम शब्द दुख है। दिन, दिन माने डे, डे का ऑपोजिट नाइट, नाइट इन हिंदी यू कॉल इट एज रात। दिन रात, दिन रात। दूसरा है जन्म, जन्म मीन्स बर्थ, डेथ मीन्स मरण। जन्म का विलोम शब्द मरण है। धनी, धनी मीन्स रिच, रिच ऑपोजिट पुअर, पुअर इन हिंदी यू कॉल इट एज गरीब। धनी गरीब। और आखिरी है इधर, इधर मीन्स हियर, उधर मीन्स देयर, उधर, यही आखिरी है। सो अभी क्या हुआ, यहाँ जो शब्द लिखा है वो आपको हमें दिखाई पड़ेगा। इधर, इधर मीन्स हियर, उधर, उधर मीन्स देयर। सो हियर देयर। सो यह विलोम शब्द है। इसका पीडीएफ में बना के भेजूंगी। ये जो आज मैं जो पीडीएफ बना के भेज रही हूँ वो मंथली एग्जाम में नहीं है। जितना मैंने पहले दिया उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स और ये जो विलोम शब्द भेजूंगी वो फर्स्ट मंथली टेस्ट में नहीं है। दिस पोर्शन इज नॉट देयर टुडे, व्हाटएवर पीडीएफ आई एम गोइंग टू सेंड, इट इज नॉट देयर इन द फर्स्ट मंथली टेस्ट। व्हाटएवर आई हैव गिवन बिफोर दिस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन फर्स्ट मंथली टेस्ट। रीड योर क्लास वर्क करेक्टली, प्रैक्टिस, एंड first is poem Prarthana. First para is there. It is for memorization. So you have to memorize it. It will be asked for writing purpose. So memorize properly. Write down without making mistake. So bye children. Thank you children.